صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو عورت سے اور عورت کو مسلمانوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند ایک بیوی کا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ ہر اس امیر اور وزیر کو دشمن بنانے سے ڈرتا تھا جس نے کئی لڑکیوں کو گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ عورت کے خریدار یہی لوگ تھے۔ انہی کی دولت سے عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی، اغوا کی وارداتیں ہوتی تھیں، قتل اور خون خرابے ہوتے تھے، اور امراء اور حاکموں کی زن پرستی کا ہی نتیجہ تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے لڑکیوں کی وساطت سے سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کو یہ احساس بھی پریشان کیے رکھتا تھا کہ یہی عورت مردوں کے دوش بدوش کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر اب یہ عورت جو جہاد میں مرد کے لیے آدھی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی آدھی جنگی قوت ختم ہو گئی ہے، بلکہ عورت ایک ایسا نشہ بن گئی ہے جس نے قوم کی مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے تحت حرم بھی خالی کرنے تھے، مگر ایسے احکام وہ اسی صورت میں نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت کی خلافت یا امارت اس کے ہاتھ آ جائے۔ یہ مہم بڑی دشوار تھی۔ اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک معتمد خاص اور حکومت کے رازوں کا رکھوالا خادم الدین البرق بھی ایک نوجوان حسینہ کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر ایسی بری طرح چھا گئی ہے کہ وہ اب فرائض سلطنت سے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان ایوبی کی فوجی طاقت سے مروب نہیں ہوئے، بلکہ اسے اسلامی اور مصری فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اتنے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسبان ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ عرب میں مسلمان امراء اور حاکموں کی تعیش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے ہیں، پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کو قومی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عظمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان کی تقریر میں جوش تھا اور ایسا تاثر کہ تماشائیوں کے ولولوں میں ہلچل مچ گئی، اور اسی روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ 10 روز تک بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 جوان اپنے اونٹ ساتھ لائے اور 1000 کے قریب گھوڑوں اور خچروں سمیت آئے۔ سلطان نے انہیں جانوروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور فوج نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اسی تک محدود تھیں کہ سپاہی کی کوئی ذاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی۔ انہوں نے فوجوں کو تنبیہ کی، سزا سے ڈرایا، خدا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا۔ وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بجاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر کے آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے، ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں۔ وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے، وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر عورت اپنے ہر فوجی گاہک کو یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعض کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے۔ ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہیں۔
वहां के निशान बता रहे थे कि जहां से खैमे उखाड़े गए हैं। रात के वक्त उनकी तलाश मुमकिन न थी। सिपाही की लाश उठा लाए। इस हादसे की रिपोर्ट सुल्तान अय्यूबी को दी गई और यह भी बताया गया कि फौज में जराइम बढ़ गए हैं और 3 घोड़े भी चोरी हो चुके हैं। सुल्तान ने अली बिन सुफियान को बुलाकर कहा कि वो सिपाहियों के भेस में अपने सुराग रसां फौज में शामिल करके मालूम करे कि ये जराइम क्यों बढ़ गए हैं। सुल्तान ने इस सिलसिले में अलबर्क को भी हुक्म दिया। इस क्यों का जवाब शहर के अंदर मौजूद था, जहां तक अली बिन सुफियान के सुराग रसानों की रसाई मुहाल थी। ये एक बहुत बड़ा कलानुमा मकान था। मिस्रियों का एक कुंबा नहीं बल्कि पूरा खानदान इसमें रहता था। इस मकान और मकीनों को शहर में इज्जत हासिल थी क्योंकि यहाँ खैरात बहुत तकसीम होती थी। नादारों को यहाँ से माली मदद मिलती थी। फौजी मेले में इस खानदान ने सुल्तान अय्यूबी को अशरफियों की 2 थैलियाँ फौज के लिए पेश की थीं। ये सौदागर खानदान था। मिस्र में सुल्तान अय्यूबी के आने से पहले ये मकान सूडानी फौज के बड़े रुतबे वालों और इंतजामिया के हाकिमों की मेहमानगाह बना रहा था। सूडानियों को सुल्तान अय्यूबी ने आकर ख़त्म कर दिया तो इस खानदान की वफादारियां हुकूमत के साथ रहीं और ये सुल्तान अय्यूबी का वफादार हो गया। जिस रोज़ सुल्तान अय्यूबी ने अलबर्क और अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि वो फौज में जराइम की वबा की वजूहात मालूम करें, उससे अगली रात उस मकान के एक कमरे में 10-12 आदमी बैठे थे। शराब का दौर चल रहा था। कमरे में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। उसे देखकर सब उठ खड़े हुए। उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसका आधा चेहरा नकाब में था। कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया और लड़की ने नकाब उठा दिया। वो बूढ़े के साथ बैठ गई। कल अमीर मिस्र तक इत्तला पहुंच गई है कि फौज में जुएबाजी और बदकारी बढ़ गई है। बूढ़े ने कहा, हमारी आज की ये नशिस्त बहुत अहम है। अमीर ने सिपाहियों के भेस में फौज में सुराग रसां शामिल करने का हुक्म दे दिया है। हमें उन सुराग रसानों को नाकाम करना है। ताज़ा इत्तला बड़ी ही उम्मीद अफजा है। 2 मिस्री सिपाहियों ने एक औरत पर लड़कर एक दूसरे को कत्ल कर दिया है। ये हमारी कामयाबी की इब्तिदा है। 3 महीनों में सिर्फ एक मुसलमान सिपाही ने दूसरे को कत्ल किया और खुद भी कत्ल हुआ है। एक आदमी ने बूढ़े की बात काट कर कहा, कामयाबी की ये रफ्तार बहुत सुस्त है। कामयाबी हम उसे कहेंगे जब अय्यूबी का कोई नायब सालार अपने सालार को कत्ल कर देगा। मैं कामयाबी उसे कहूंगा जब कोई सालार या नायब सालार सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर देगा। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम है कि 1000 सिपाही कत्ल हो जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा मतमे नज़र अय्यूबी का कत्ल है। आप सबको पिछले साल की दोनों वाक़यात याद होंगे। साहिल पर सुल्तान अय्यूबी पर तीर चलाया गया, वो खता हो गया। रूम से आदमी आए, वो ऐसे नाकाम हुए कि सब के सब मारे गए और एक बदबख्त मुसलमान हो गया। इससे क्या जाहिर होता है? ये कि सुल्तान को कत्ल करना इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं। ये भी हो सकता है कि अय्यूबी कत्ल हो जाए तो उसका जानशीन उससे ज़्यादा सख्त और कट्टर मुसलमान साबित हो। इसलिए ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि उसकी फ़ौजों को इस खूबसूरत तबाही के रास्ते पर डाल दो जिस पर सलीब के परिस्तारों ने बगदाद और दमिश्क के मुसलमान उमरा और हाकिमों को डाल दिया है। सलीब के परिस्तारों और सूडानियों को शिकस्त खाए 1 साल गुजर गया है। एक ने कहा, इस 1 साल में आपने क्या किया है? मोहतरम, आप बड़ा लंबा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। 2 आदमियों का कत्ल बेहद लाजमी है, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी, दूसरा अली बिन सुफियान। अगर अली बिन सुफियान को ख़त्म कर दिया जाए तो अय्यूबी अंधा और बहरा हो जाए। एक और ने कहा, मैंने वो आंखें हासिल कर ली हैं जो सुल्तान अय्यूबी के सीने के हर एक राज को देख सकती हैं। बूढ़े ने कहा और उस लड़की की पीठ पर हाथ फेरा जो उसके साथ आई थी। बूढ़े ने कहा, ये हैं वो आंखें, देख लो इन आंखों को, इनमें क्या जादू है। तुम सब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक हाकिम खादिमुद्दीन अलबर्क का नाम सुना होगा। तुम में से बाज ने उसे देखा भी होगा। सिर्फ 2 आदमी हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में देख सकते हैं, एक अली, दूसरा अलबर्क। अली बिन सुफियान को कत्ल करना हिमाकत होगी। मैंने जिस तरह अलबर्क पर कब्जा कर लिया है उसी तरह अली पर भी कर लूंगा। अलबर्क आपके कब्जे में आ चुका है। एक ने पूछा, हाँ। बूढ़े ने लड़की के रेशमी बालों को हाथ से छेड़कर कहा, मैंने इसे इन जंजीरों में जकड़ लिया है। मैंने आज आप सबको चंद और बातें बताने के अलावा ये खुशखबरी भी सुनानी थी। हमें जल्दी बर्खास्त होना है क्योंकि हम सब का एक जगह इकट्ठा होना ठीक नहीं। इस लड़की को तुम सब शायद जानते हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी उस्तादी से ये ड्रामा खेल लेगी। इसकी उम्र देखिए, पुख्ता नहीं है। मैं पूरा 1 साल ऐसे मौके की तलाश में मारा फिरता रहा कि अली बिन सुफियान या अलबर्क को या दोनों को फांस सकूं। मैं उनसे मिला कभी नहीं क्योंकि मैं उनकी शनाख्त में नहीं आना चाहता था। फौजी हुक्काम को सुल्तान शहरियों से दूर रखता है। आखिर उसने फौजी मेले का ऐलान किया और मुझे पता चल गया कि उसने अपने फौजी कमांडारों
सालारों और ओहदेदारों से कहा है कि मेले में वो शहरियों में बैठें और उनसे बातें करें और उन पर अपना रोब नहीं बल्कि एतमाद पैदा करें। मुझे अली बिन सुफियान कहीं नजर नहीं आया। इस लड़की को मैं साथ ले गया था। अलबर्क नजर आ गया। उसके साथ 2 कुर्सियां खाली थीं। मैंने लड़की को उसके साथ बिठा दिया। इसे मैं 8 महीनों से उस्तादी तरीके सिखा रहा था। मुझे अपना बूढ़ा खावंद और अपने आप को खरीदी हुई मजलूम लड़की बताकर इसने अलबर्क जैसे मोमिन को अपनी खूबसूरती में गिरफ्तार कर लिया। मुलाकात का वक्त और जगह तय कर ली। मैंने इसे बताया कि इसे खंडर में नाटक खेलना है। लड़की खंडर में चली गई। मैं 4 आदमियों के साथ वहां मौजूद था। 2 आदमी इस वक्त यहां मौजूद हैं। 2 को आप सब नहीं जानते। वो हमारे गिरोह के आदमी हैं। इसने अलबर्क पर साबित कर दिया कि ये उसकी खातिर जान दे देगी। हमारे 4 साथियों ने अलबर्क पर और उस पर तलवारों से हमले किए। उसने बर्छी के वार किए। ये नाटक इस कदर हकीकी मालूम होता था कि अलबर्क को शक तक न हुआ। कमबख्त के दिमाग में ये भी न आया कि तलवारों के और बर्छी के इतने वार हुए मगर कोई जख्मी तक न हुआ। मैंने ये कहकर ये खेल खत्म किया कि ये लड़की इतनी बहादुर है कि किसी बहादुर के पास ही अच्छी लगती है। मैंने उसे खुशी का इजहार करते हुए अलबर्क के हवाले कर दिया। मैंने उसे अपना नाम आसिफा बता रखा है। लड़की ने कहा, मैं हैरान हूं कि इतनी पुख्ता उम्र का हाकिम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गया है। मैंने उसे शराब का आदी बना दिया है। उसने कभी नहीं पी थी। पहली बीवी उसी घर में रहती है। उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो सब कुछ ऐसे भूल गया है। लड़की ने महफिल को तफसील से बताया कि उसने कैसे कैसे तरीकों से सुल्तान अयूबी के इस मोतमिद खुसूसी की अक्ल को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। इन 3 महीनों में ये लड़की मुझे सुल्तान अयूबी के कई कीमती राज दे चुकी है। बूढ़े ने कहा, सुल्तान अयूबी बहुत ज्यादा फौज तैयार कर रहा है। इसमें से वो आधी मिस्र में रखेगा और बाकी निस्फ को अपनी कमान में ईसाई बादशाहों के खिलाफ लड़ाने के लिए ले जाएगा। उसकी नजर यरूशलेम पर है। लेकिन अलबर्क से इस लड़की ने जो राज लिए हैं वो ये हैं कि सुल्तान सबसे पहले अपने मुसलमान हुक्मरानों और कलादारों को मुत्तहिद करेगा। उनके इत्तेहाद को सलीब के परिस्तारों ने बिल्कुल इसी तरह बखेर दिया है जिस तरीके से हमने अलबर्क को अपने कब्जे में लिया है। तो क्या हम ये समझें कि अलबर्क हमारे गिरोह का फर्द है? एक आदमी ने पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं, वो सच्चे दिल से अयूबी का वफादार है। वो उतना ही वफादार उस लड़की का भी है। ये लड़की सुल्तान, कौम और इस्लाम की वफादारी का इजहार ऐसे वालिहाना तरीके से करती है कि अलबर्क उसे कौम की जांबाज बेटी समझता है। इस लड़की के हुस्न जवानी और मोहब्बत के अमली इजहार का जादू अलग है। अलबर्क को हम अपने साथ नहीं मिला सकते। जरूरत ही क्या है, वो पूरी तरह हमारे हाथों में खेल रहा है। सुल्तान अयूबी और क्या करना चाहता है? उस ग्रोह के एक रुकन ने पूछा। उसके जहन में सल्तनत इस्लामिया है। बूढ़े ने कहा, वो सलीब की सल्तनत में इस्लाम का झंडा गाड़ने का मंसूबा बना चुका है। हमारे इन जासूसों को जो समंदर पार से आए हैं अयूबी ने गिरफ्तार और बेकार करने के लिए अली बिन सुफियान की निगरानी में एक बहुत बड़ा गिरोह तैयार किया है। अलबर्क से हासिल की हुई इत्तलात के मुताबिक उसने जांबाजों की एक अलग फौज तैयार की है जिसे वो सलीबी मुल्कों में भेजकर जासूसी और तबाही करवाएगा। इस फौज की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। सलाहुद्दीन अयूबी के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। इन्हीं को अमली जामा पहनाने के लिए उसने फौजी मेले का ढोंग रचाया और 6-7 हजार जवान भर्ती कर लिए। लोग अभी तक भर्ती हो रहे हैं। भर्ती होने वालों में सुडानी भी हैं। मुझे ऊपर से जो हिदायत मिली हैं वो ये हैं कि अयूबी की फौज में बदकारी के बीज बोने हैं। इसका तरीका यह है कि इनके दिलों में औरत और जुआ दाखिल कर दो। बूढ़े ने बताया कि उसने फौजी मेले के फौरन बाद अपने आदमी भर्ती करा दिए थे। उन्होंने बड़ी खूबी से फौज में जुआ शुरू करवा दिया है। जुआ और औरत ऐसी चीजें हैं जो इंसान को चोरी और कत्ल तक ले जाती हैं। उसने दूसरा तरीका ये बताया कि इस्मत फरोश औरतों को ट्रेनिंग देकर फौजी कैंपों के इर्द गिर्द छोड़ दिया गया है जो ये जाहिर नहीं होने देती कि वो पेशावर हैं। इन्होंने सुल्तान के फौजियों को बदी के रास्ते पर डालने के साथ साथ इनमें रकाबत भी पैदा कर दी है। बूढ़े ने कहा, इसकी कामयाबी परसों सामने आई है। 2 सिपाही एक औरत के खैमे में बैक वक्त पहुंच गए। दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। एक तो खैमे में ही मर गया, दूसरे के मुतालिक पता चला कि कैंप में जाकर मर गया है। ये रिपोर्ट सुल्तान अयूबी तक पहुंच गई है। उसने अली बिन सुफियान और अलबर्क को हुक्म दिया है कि फौज में अपने सुराग रसां भेज कर मालूम करें कि जुआबाजी, चोर चकारी और बदकारी क्यों बढ़ती जा रही है। लिहाजा आप सब इन तमाम औरतों से जो इसी काम में मसरूफ हैं कह दें कि कैंपों के करीब न जाएं। उसी मजलिस में यह भी बताया गया कि आसिफा, जिसका असली नाम कुछ और था, 5वीं-6ठी रात उस बूढ़े को इत्तलाएं देने जाती है जो वो अलबर्क से हासिल करती है। जिस रात उसे बाहर निकलना होता है वो अलबर्क को शराब में एक खास सुफूफ खोल कर पिला देती है। उसके असर से सुबह तक उसकी आंख नहीं खुल सकती।
मजलिस में ये इंकशाफ भी हुआ कि मिस्र के शहरों और कस्बों में खुफिया कहबा खाने और किमार खाने कायम कर दिए गए हैं। इनके असरात उम्मीद अफजा हैं। तरबियत याफ्ता औरतें अच्छे अच्छे घरानों के नौजवानों को बदकारी के रास्ते पर डालती जा रही हैं। अब कोशिश ये की जाएगी कि मुसलमान लड़कियों में भी बेहजाई का रुझान पैदा किया जाए। ये महफिल जो जासूसों का एक खुफिया इजलास था, बर्खास्त हुई। वो सब इकट्ठे बाहर न निकले। एक आदमी बाहर जाता था, 10-15 मिनट बाद दूसरा जाता था। बूढ़ा भी चला गया, सिर्फ आसिफा और एक आदमी रह गए। आसिफा ने निकाब में चेहरा छुपाया और उस आदमी के साथ निकल गई। अलबर्क ने आसिफा को एक राज बना के रखा हुआ था। उसने अभी किसी को नहीं बताया था कि उसने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी मायूब नहीं थी, लेकिन वो डरता था कि दोस्त मजाक करेंगे कि इतना अरसा एक बीवी के साथ गुजार कर 40 साल की उम्र में नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली। मगर ये भेद छुप न सका। अली बिन सुफियान ने शहर में और फौजी कैंपों के इर्द गिर्द अपने जासूस फैला रखे थे। उसे ये इत्तलाएं मिल रही थीं कि फौजी मेले के बाद शहर में भी जुआ और बदकारी बढ़ गई है। एक रोज एक सुराग रसा ने अली बिन सुफियान को ये रिपोर्ट दी कि गुज़श्ता 3 महीनों में उसने 4 बार देखा है कि खादिम अलबर्क के घर से रात उस वक्त जब सब सो जाते हैं एक औरत स्याह लिबादे में लिपटी हुई निकलती है। वो थोड़ी दूर जाती है तो एक आदमी उसके साथ हो जाता है। सुराग रसा ने बताया कि 2 बार उसने यहीं तक देखा। तीसरी बार उसने औरत का पीछा किया। वो उस आदमी के साथ एक मकान में चली गई, वहां से कुछ देर बाद निकली और उस आदमी के साथ वापस चली गई। उस सुराग रसा ने बताया कि उसने उस औरत को गुज़श्ता रात घर से निकलते एक आदमी के साथ जाते देखा तो ताक़ुब किया। वो उसी मकान में दाखिल हो गई। जरा सी देर बाद वो एक आदमी के साथ मकान से निकली। वो दोनों शहर के एक बहुत बड़े मकान में दाखिल हो गए। सुराग रसा मकान से दूर दूर रहा। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद उस मकान से एक एक करके 11 आदमी निकले। आखिर में ये औरत एक आदमी के साथ निकली। सुराग रसा अंधेरे से फायदा उठाते हुए उनके ताक़ुब में गया। अलबर्क के मकान से कुछ दूर आदमी एक और तरफ चला गया और औरत अलबर्क के मकान में दाखिल हो गई। सुराग रसा अलबर्क जैसे हाकिम के घर के मुताल्लिक कोई बात कहने की जुर्रत नहीं कर सकता था, लेकिन अली बिन सुफियान की हिदायत और अहकाम बड़े ही सख्त थे। उसने अपने जासूसों, मुखबरों और सुराग रसानों से कह रखा था कि वो सुल्तान अय्यूबी की किसी हरकत को शक से देखें तो भी उसे बताएं और वो किसी के रुतबे का लिहाज न करें। जहां उन्हें किसी किस्म का शक हो, खा कितना ही मामूली क्यों ना हो, वो अली बिन सुफियान को तफसील से बताएं। ये सबक जासूसी की ट्रेनिंग में शामिल था कि जासूसी की कामयाबी का दारोमदार ऐसी ही हरकतों और बातों से होता है जिन्हें बेमानी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस सुराग रसा ने 4 मरतबा जो मुशाहिदा किया था वो अली बिन सुफियान के लिए अहम था। वो अलबर्क की बीवी को अच्छी तरह जानता था। वो ऐसी औरत नहीं थी रातों को किसी गैर मर्द के साथ बाहर जाए। अलबर्क की कोई जवान बेटी भी नहीं थी। ये तो किसी को भी इल्म न था कि अलबर्क ने एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली है। उसने इस मसले पर बहुत गौर किया। उसे ये ख्याल भी आ गया कि अलबर्क उसका दोस्त भी है। उसे हक पहुंचता है कि उसके दोस्त के घर में कोई गड़बड़ है तो उसके लिए कुछ करे। मगर उसके जहन में जो सोच गालिब थी वो ये थी कि शहर में मशकूक औरतों का रेला सा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं अलबर्क किसी बदकार औरत के चक्कर में आ गया हो। एक तरीका उसके दिमाग में आ गया। उसने अपने महकमे की एक औरत को इस रूप में अलबर्क के घर में पहुंचा दिया कि वो एक मजलूम औरत है, उसका खामद मर गया है और उसके बेटे आवारा हो गए हैं, लिहाजा उसकी इयानत की जाए। हिदायत के मुताबिक ये औरत उस वक्त अलबर्क के घर में गई जब वो घर में नहीं था। दूसरी हिदायत के मुताबिक वो सारे घर में फिरी तो उसे आसिफा नजर आ गई। ये औरत अलबर्क की पहली बीवी से मिली, अपनी फरियाद पेश की और कहा कि वो अलबर्क की पहली बीवी अलबर्क से उसकी सिफारिश करे। बातों बातों में उसने कहा कि आपकी बेटी की शादी हो गई है या अभी कंवारी है। उसे जवाब मिला, ये मेरी बेटी नहीं, मेरे खामद की दूसरी बीवी है। 3 महीने हुए इन्होंने शादी की है। अली बिन सुफियान के लिए ये इत्तला हैरानकुन थी। उसके दिल में यही शक पैदा हो गया कि रात को बाहर जाने वाली उसकी नई बीवी हो सकती है। अली ने एक और औरत के हाथ अलबर्क की पहली बीवी को पैगाम भेजा कि वो उसे कहीं बाहर मिलना चाहता है, मगर अलबर्क को पता न चले। उसने ये भी कहला भेजा कि उनके घर के मुताल्लिक कोई बहुत ही जरूरी बात करनी है। अली ने मुलाकात के लिए एक जगह बता दी और वक्त भी बता दिया, और वक्त वो बता दिया जब अलबर्क दफ्तर में मसरूफ होता था। वो आ गई। अली बिन सुफियान के दिल में इस मौज़्ज़िज़ औरत का बहुत ही एहतराम था। उसने अलबर्क की बीवी से कहा कि उसे मालूम हुआ है कि अलबर्क ने दूसरी शादी कर ली है। बीवी ने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि उसने दूसरी शादी की है, चौथी और 5वीं नहीं। बातें करते करते अली बिन सुफियान ने पूछा, वो कैसी है? बीवी ने जवाब दिया, बहुत खूबसूरत है। अली बिन सुफियान ने पूछा, शरीफ भी है? आपको उस पर किसी किस्म का शक तो नहीं? कुछ देर तक वो गहरी सोच में पड़ी रही। अली ने कहा, अगर मैं ये कहूं कि वो कभी कभी रात को बाहर चली जाती है तो आप बुरा तो न जानेंगे?
वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं खुद परेशान थी कि ये बात किससे करूं। मेरे खामद का ये हाल है कि उसका गुलाम हो गया है, मुझसे तो अब बात भी नहीं करता। मैं इस लड़की के खिलाफ खामद के साथ बात करूं तो वो मुझे घर से निकाल दे। वो समझेगा कि मैं हसद से शिकायत कर रही हूं। ये लड़की साफ नहीं। हमारे घर में शराब की बू भी कभी नहीं आई थी, अब वहां मटके खाली होते हैं। अली बिन सफियान ने चौंक कर कहा, शराब? अलबर्क शराब पीने लगा है? बीवी ने कहा, सिर्फ पीता नहीं है, बदमस्त और मदहोश हो जाता है। मैंने 6 बार इस लड़की को रात के वक्त बाहर जाते और बहुत देर बाद आते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जिस रात लड़की को बाहर जाना होता है उस रात अलबर्क बेहोश होता है, सुबह बहुत देर से उठता है। लड़की बदमाश है, उसे धोखा दे रही है। अली बिन सफियान ने कहा, लड़की बदमाश नहीं, वो जासूस है। वो अलबर्क को नहीं, कौम को धोखा दे रही है। बीवी ने चौंक कर कहा, जासूस? मेरे घर में जासूस? वो उठ खड़ी हुई, दांत पीस कर बोली, आप जानते हैं कि मैं शहीद की बेटी हूं। अलबर्क पक्का मुसलमान था, उसने जिंदगी इस्लाम के नाम पर वक्फ कर रखी है। मैं बच्चों को जिहाद के लिए तैयार कर रही हूं और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों का बाप एक जासूस लड़की के कब्जे में आ गया है। मैं अपने बच्चों के बाप को कुर्बान कर सकती हूँ, कौम और इस्लाम को कुर्बान होता नहीं देख सकती। मैं दोनों को कत्ल कर दूंगी। अली बिन सफियान ने उसे बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और उसे समझाया कि अभी ये यकीन करना है कि ये लड़की जासूस है और ये भी देखना है कि अलबर्क भी जासूसों के गिरोह में शामिल हो गया है या उसे शराब पिलाकर सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस औरत को यह भी बताया गया कि जासूसों को कत्ल नहीं, गिरफ्तार किया जाता है और उनके दूसरे साथियों के मुताल्लिक पूछा जाता है। अली बिन सफियान ने उसे कुछ हिदायत दी और उसे कहा कि वो लड़की की हर हरकत पर नजर रखे। ये औरत चली गई। यूं मालूम होता था जैसे अली बिन सफियान की हिदायत पर ठंडे दिल से अमल करेगी, मगर उसकी चाल और उसके अंदाज से यह भी मालूम होता था कि किसी भी वक्त बेकाबू हो जाएगी। वो हरम की औरत नहीं थी, वो खामद की वफादार बीवी और मुल्क मिल्लत पर जान निसार करने वाली कौम की बेटी थी।